Okay, everybody, this is the third session of insurance claim loss of stock, right? Okay, a very small question. Quickly, we'll do question 6 and 7. Let us see. Question number 6 कहता है, in January, a firm took a policy of 60 lakhs to insure their go down. On 7th of March, 44 lakhs के goods destroy हो गए. Stock in go down was 80 lakhs. क्वेश्चन कहता है इंश्योरेंस क्लेम निकालो. अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. इसमें का कोई स्टेप 1 स्टेप 2 कुछ भी नहीं है. मेरे को डायरेक्ट बताइए, स्टेप 1 की जरूरत तक नहीं. कौन बताएगा? डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स. व्हाट इज द आंसर ऑफ स्टेप 2? एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ है. व्हाट इज द आंसर ऑफ स्टेप 2? 80 lakhs is a correct answer. They have not given you salvage value, बट उन्होंने एक तरह से स्टेप 3 का आंसर आपको दे दिया है. स्टेप 3 नेट क्लेम कितना है? एब्सोल्युटली करेक्ट, 44 lakhs, बिकॉज द डिफरेंस है वो आपका सैल्वेज वैल्यू है. और कौन बताएगा यहां पर स्टेप 4 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे पता चला आपको? बिकॉज 60 lakhs की पॉलिसी है और 80 lakhs का माल लेके बैठे हो. ऐसा थोड़ी होता है भाई, अंडर इंश्योरेंस का केस बन रहा है. तो आइए लिख ले सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 6, step 1 not applicable. step 1 not applicable. step 1 यहां पे बनना ही नहीं है भाई. step 1 नहीं बनेगा. directly step 2. what is the heading of step 2? calculation of stock on date of fire. calculation of stock on date of fire. और वो तक देके रखा है which is 80 lakhs, which is 80 lakhs. You can just write in the bracket given. Step 3, calculation of net claim. Calculation of net claim. Underline कर as usual. सबसे पहले stock on date of fire 80 lakhs. stock on date of fire 80 lakhs minus salvage value and I hope you understand like a balance figure, right? because net claim का आंसर आ चुका है मेरे पास 44 lakhs. तो जरा कोई बताएगा 80 minus 44 कितना आ रहा? 36. salvage value 36 lakhs. I'll get my net claim as 44 lakhs. I will get my net claim as 44 lakhs. Step 4, admissible claim. हाँ भाई, net claim is 44 lakhs into 60 upon 80. क्या कोई बता सकता है? 33 lakhs is the answer. Step 4. स्टेप 4 का आंसर कैलकुलेटेड है बोर्ड पर. 44 lakhs into 60 डिवाइड बाय 80 lakhs, दैट इज 33 lakhs. बहुत ही छोटू पोटू क्वेश्चन. हाँ ग्रिवन, डन. श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एवरीबडी, क्विकली. दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है. वो लोग बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 90,000, इंश्योरेंस पॉलिसी 65 एंड जो स्टॉक सैल्वेज हुआ वो है 40,000. कौन बताएगा स्टेप 2 का आंसर किधर है? 90,000. व्हाट इज स्टेप 3 का आंसर? 90 माइनस सैल्वेज वैल्यू 40, दैट विल गिव यू 50. स्टेप 4 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे पता चला? यस और नो? चलिए कर लेंगे प्लीज क्विकली. स्टेप 2, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर गिवन 90 lakhs. 90,000 था क्या? Extremely sorry. 90,000.
Step 3, stock on date of fire 90,000 less salvage value 40,000. That will give you net claim as 50,000. Step 4, calculation of admissible claim. What was the policy amount? 65,000. So 50,000, 65,000 upon 90,000. Yes, anybody can. How much, ma'am? 36,111. डन. सबका सबने बना लिया अच्छी तरह से. क्वेश्चन 8 हो गया है, 9 हो गया है, 10 हो गया. एक मिनट, फायर फाइटिंग वाला एक क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर, यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5. एवरीबडी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5. वेरी नाइस क्वेश्चन. स्टार मार्क, मतलब अब आपके पास बुकलेट तो नहीं है, बट जब आप क्वेश्चन 5 बुक में लिख रहे होते हैं, स्टार मार्क दैट. So question number 5, let us read together. On 29th of August, the godown has caught fire or a large part of stock was destroyed. Goods costing 1,08,000 could be salvaged, incurring a fire fighting expense of 4,700. Can I say this is something new? The trader provides you the following information. So let's opening, closing, purchases from 1st April to the date of fire, free samples, goods withdrawn, sales, and sales from 1st April to the date of fire. The company has admitted fire fighting expenses. The trader has taken a policy of 9 lakhs with average clause. Question कहता है करके क्यों नहीं देता? 2 minutes to you, then we discuss. Two minutes to you. Now it's a full-fledged question. Do you agree or no? Tell me, don't shout, raise your hands. Step 1, तू कौन सा financial year के लिए बनाएगा? You have to raise your hands. You cannot shout. You cannot shout, boss. You just have to raise your hands. कि financial year जो है step 1 का कौन सा year का बनाएगा? Why इतना लोग? मेरे को लगा पूरा पब्लिक हाथ ऊपर उठाएगा. ऐसे थोड़ी होता है भाई. और गलत आने पर अपन थोड़ी यहाँ मुर्गा बनाते हैं. नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है. सर बताएंगे. 1213 is the absolute correct answer. 1213, क्योंकि आग लगी है फाइनेंशियल ईयर 13-14 में. कैसे पता चल रहा है मुझे? ये दिख रहा है आपको?
इसका मतलब ये 13-14 फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, तो मेरे को तो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का है. डू यू एग्री विद दिस और नो? टेल मी, ये जो सैंपल और ये जो गुड्स विड्रॉन, ये जो दो एडजस्टमेंट है, ये जो दो एडजस्टमेंट है, ये हाँ भाई, ये जो दो एडजस्टमेंट है, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स, ये स्टेप 1 में आएगा कि स्टेप 2 में आएगा, ये आपको बताना. कम ऑन यार, मेरे को यार क्लास में अगर 50-55 लोग हैं तो मेरे को 80 हाथ ऊपर चाहिए. कैसे? दो हाथ ऊपर करो भाई कुछ लोग. यस यस मैम, लास्ट. स्टेप 2 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वहां पे दिख रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ फायर. इसका मतलब वो दोनों एडजस्टमेंट स्टेप 2 में आ रेला है, स्टेप 1 में नहीं आएगा. स्टेप 1 में हम क्या बनाते हैं? दाबेली, पाव भाजी, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट. एब्सोल्यूट करेक्ट जवाब. ओपनिंग स्टॉक क्या है? कैसे रे, क्या जियो नंबर बोल रहे क्या? 7105, अरे 7,10,500 ओपनिंग है. परचेजेस है क्या? बोलना, फिर बोलना. सेल्स है क्या? सेल्स. डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? हाँ तो मत ले. तो ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया. क्लोजिंग स्टॉक है क्या? तो क्या तू जीपी निकाल पाएगा? क्या तू जीपी रेशो निकाल पाएगा? शुरू करेंगे, शुरू कर. स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो. स्टेप 1, calculation of GP ratio, and I want a proper trading account. Opening stock 7,10,500 by Sallu 80 lakhs by Clozu 790,100 to purchase 56, 79, 600. Get me the gross profit, buddy. Okay. द ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने है, जीपी रेशो आपके सामने है. कृपया इसका फायदा लें. धन्यवाद. Are you done with the step 1? जीपू रेशो बड्डी 30% लोग आगे भाग रहे हैं, अब मेरी जरूरत नहीं रही. 30% आ रहा है जीपी रेशो एवरीबडी. स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर.
calculation of stock on date of fire, and you have to make a memo trading account. मेमो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है भाई. सभी का स्टेप 1 हो चुका है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टेप 1 लिख रहा है? वी विल वेट फॉर यू. हम एक परिवार की तरह हैं. नो, स्टेप 1 डन. ओके. सो ओपनिंग स्टॉक अब क्या हो जाएगा? 790 100. नाउ जैसे मैंने पहले भी कहा था भाई, डिपेंड करता है लोग कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं. और ऐसे स्थिति में कल आपने एक वर्डिक्ट दिया था कि सर ड्राइंग्स अगर हो तो परचेज से ही लेस कर देना. आज एक और एक एडजस्टमेंट आ रही है कि सैंपल्स. अब सैंपल्स का भी ऐसा है कि कुछ क्लासेस में परचेज से लेस किया जाता है, कुछ जगह पर क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है. बताइए सैंपल्स के साथ क्या करूं? क्रेडिट साइड मतलब एक परचेज से लेस और एक क्रेडिट साइड, दोनों परचेज से लेस. दोनों करो झगड़े, करो इंडिया पाकिस्तान. तो जिसको जैसा करना है करे. मैं दोनों परचेजेस में से लेस कर रहा हूं. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट्स ओनली प्रेजेंटेशन. आंसर में कोई बदलाव नहीं आता. तो परचेज अपना है 56 79 600. उसमें अरे अरे एक बेटा एक 33 10 700. सैंपल है 41,000 और ड्राइंग्स है चंदई 2000. Can you tell me the net amount? 32 67 700. Sir, what is the sales? 45 36 45 36 000. सर तो 45 36 000 पर क्या आप जीपी बताएंगे? 30%, 13 लाख. ऐसे समय पे जो क्लोजिंग स्टॉक का बैलफिग आएगा बताइए. ऐसा यू कैन सी दिस. ओपनिंग परचेजेस का नेट यहां पर है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग परचेजेस जीपी यहां पर है, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. ये स्टेप 2 है. अब लोग आगे नहीं जा पाएंगे, वो रुके हुए हैं, वो क्रांति चौक पर जाकर रुके हैं. स्टेप 3 आगे ना जाएं, पोपट हो जाएगा. साथ में चलें. धन्यवाद. 882 600 आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ रहा है. मुझे डर लग रहा है, लिख देता हूं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. $882 600 सबने बना लिया फॉर्मेट के साथ प्रॉपर. पक्का कोई रह गया है? सबको मालूम पड़ा ये जीपी कहां से आया? 136800 कहां से आया? ये सेल्स पे 30%. ओके. अब हमें क्या करना है? हमें करना है स्टेप 3. स्टेप 3 है कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम. तो सबसे पहले तो आएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर विच इज 882 600. उसमें से आप लेस कर दोगे एज यूजुअल क्या? सैल्वेज वैल्यू कितना है? 1,08,000 और उसमें ऐड होता है फायर फाइटिंग
एक्सपेंसेस कितने? 4700। क्या मेरे को आप ये आंसर बताएंगे? $779,300। अब अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि सर पहले थोड़ा समझा भी दीजिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि फायर फाइटिंग खर्चा हम क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एक चीज मुझे ये भी लोग पूछते हैं कि सर क्या उसके पैसे देने पड़ते हैं? जस्ट बिकॉज कि वो गवर्नमेंट का है इसका मतलब ये नहीं होता। जब आपको पुलिस कोई चीज में हेल्प करती है उसमें भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि मेरा कुत्ता घूम गया ढूंढो औरंगाबाद। देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड मैंडेटरी चार्जेस दैट यू नीड टू पे। आंसर्स बताने हैं, एक नहीं सॉल्व कर कर छोड़ देंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो यहां पर तो उन्होंने बोला है इसलिए मैंने भी ले लिया है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। लिख लीजिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 779,300। ट्रू, परफेक्ट, बट बोलो ना। स्टेप 4, स्टेप 4 कौन बताएगा अपना पॉलिसी का अमाउंट कितना है? बताइए अंडर इंश्योरेंस है कि नहीं? कैसे पता चला? यही था ना स्टेप 2 का आंसर। तो स्टेप 2 में आपका स्टॉक 8,82,000 है, जबकि पॉलिसी तो 9 लाख की है। अच्छा खासा लेके बैठे हैं। स्टेप 4 नहीं आएगा, स्टेप 3 ही आपका स्टेप 4 का आंसर। मुझे ये प्रॉपर्ली लिखना है, नीचे लिखेंगे एज द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 9 lakhs, as the policy amount that is 9 lakhs is greater than as the policy amount of 9 lakhs is greater than stock on date of fire, is greater than stock on date of fire, that is 882,600, comma, it is not a case of underinsurance. It is not a case of underinsurance. And therefore, net claim is equals to admissible claim is equals to 779,300. बोलो एवरीबॉडी, बोलो रे। अच्छा क्वेश्चन था। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। On 30th March, fire occurred in the premises of Suraj Brothers. The concern has taken a policy of 60,000. From the following books you have to create 1st Jan से 30th March. 31st दिसंबर को 95,600 परचेजेस के अंदर एक मशीनरी का परचेज आ गया है। वेजेस के अंदर मशीनरी इंस्टॉलेशन का 3,000 रुपया आ गया है।
सेल्स ऐसे तो 2,75,000 है, लेकिन उसके अंदर ऑन सेल्स 49,500 है. नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू 2/3. जीपी अगर 20% हो, सैल्वेज वैल्यू अगर 12,300 हो, तो क्वेश्चन कहता है करके दे. 2 minutes to you please. क्या लग रहा है आपको? लग ही नहीं रहा. सेल ऑन अप्रूवल तो हमने छोड़ ही दिया था. छोड़ दिया था क्या? किया ही था ना. बहुत ही सिंपल है, उसमें क्या है. करेंगे स्टार्ट. मेरे को बताइए स्टेप 1 कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है. क्यों? ये क्या दिया है मेरे को, प्लीज. स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो. स्टेप 1 calculation of GP ratio, and just underline and quickly write down 20% given. Done. Everybody. Step 2, quickly make a memo trading account. Memo trading account. Memo trading account. Memo trading account. साथ में चलना. बन गया मेमो ट्रेडिंग अकाउंट. साथ में करने वाले हम लोग. ओपनिंग, एक मिनट, इज दिस अ फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर? एब्सोल्युटली परफेक्ट. व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक? 95,600. प्लीज पुट 95,600. 95,600. वेरी गुड. कौन बताएगा परचेजेस कितना लेना चाहिए? 1,40,000. क्यों भाई? प्लांट का परचेज में कब से आने लगा? प्लांट का परचेज होता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? फिक्स असेट टू बैंक. और नॉर्मल गुड्स का परचेज होता है तो परचेज टू बैंक. तो ये कैसे होता है भाई? तो वहां से निकाल दिया आपने. पीछे दादा तेरा फर्स्ट डे क्या? नेक्स्ट. टेंशन मत ले, वो पूरा डायलॉग आग लगी बस्ती में मैं मेरी मस्ती में. लिख रहे दादा, थोड़ा बाद में बता दो तेरे को. डन परचेजेस. टेल मी व्हाट अबाउट वेजेस ना? यस, वेजेस 47. wages 47. डन. अब गेम शुरू होता है. बहुत मजा आती है मुझे ऐसा, जहां पे तुम अटकते हो ना, मुझे वहीं मजा आती है. ओके, तो आपने एक चीज देखी, 27,500 का सेल्स है और उसके अंदर 49,500 का ऑन अप्रूवल है. विल टेक. टोटल सेल्स है कितना था? 2,75,000. अब उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस इज 49,500 है ना?
कुछ गलत कर रहा हूं मैं? एक मिनट, अगर इसमें से इतना ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाला है तो बाकी का नॉर्मल है। यस और नो? नॉर्मल सेल्स 225 500। अब इसके पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदर यू अंडरस्टैंड सेल और अप्रूवल और रिटर्न। तो ये सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या होता है? सेलर जो है वो कस्टमर को कहता है आइए छोटू मैडम को जरा सामान बताओ। मैडम ने सिलेक्ट किया, लेकिन वो किसी और के लिए गिफ्ट था। तो मैडम ने जाते वक्त बोला कि अगर हमको ये बाद में पसंद नहीं आया तो हम ये घर पे लेके गए तो। अब दुकानदार को क्या करना है? रिलेशन मेंटेन करना है। तो वो ऐसा तो नहीं बोल सकता, आज आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि नहीं नहीं अभी डिसाइड कर लो, लेना है तो लेने का, नहीं तो नहीं लेने का। तो वो चला जाएगा, बाजू में 4 दुकान और है। तो सेलर क्या कहता है? कोई बात नहीं मैडम, जाइए यूज कीजिए, खाइए, तोड़िए, फोड़िए। ऐसा बोलता है क्या? नहीं, वो क्या कहता है? जाइए आप अपने मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली को बताइए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो रिटर्न कर देना। अरे यस और नो, रिटर्न कर देना। लेकिन रिटर्न करने की भी एक सीमा होती है। आप आ रहे हो 2 साल बाद, भैया वो 2 साल पहले वो शर्ट लेके गए थे, अब अच्छा नहीं लग रहा। ये कौन है? कहां से आ रहे हैं ये लोग? देयर हैज टू बी सम लिमिट ना। अब मेरे को तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, तुमको भी आता ही है। उसमें तो लॉ में तो कोई लिमिट की बात ही नहीं हुई है। लॉ में तो ऐसा कहा, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। वो तो बोलते हैं जो सर्कमस्टांसेस है, फैक्ट्स हैं, उसके हिसाब से चलो। जो सेक्टर में क्या चलता है, प्रैक्टिकली जब हम लॉ देखते हैं, समझते हैं, तो वो सेक्टर में क्या चलता है उसके हिसाब से आपको करना है। लॉ ने बोला रीजनेबल समय में फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखकर आपको तय करना। तो पहली बात तो 2 चीज हो सकती है। एक, सेलर ने खुद बोला मैडम 3 दिन में आपको जवाब देना है। एक तो ऐसा बोला, या तो बोला क्यों? बताइए आपके हिसाब से। सही है? अब आपको भी समझता है, 3 दिन अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिए और उसने 3 दिन के अंदर 3 ऑप्शन है उसके पास, 1 हां बोलना, 2 ना बोलना, और 1 कुछ भी नहीं बोलना। यहां पर कुछ भी नहीं बोलना का मतलब होता है हां, यस और नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जब आप किसी को ऑफर देते हो और उसको ऐसा बोलते हो, अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तेरी हां समझूंगा। तू क्यों हंस रहा? तू अलग एंगल में ले रहा है इसको। यस और नो? अरे बड्डी बोलो यार। और अगर कोई टाइम नहीं बोला है तो रीजनेबल समय में आपको बताना, रीजनेबल भाई समय खत्म हो गया और उसने कुछ भी नहीं बोला तो मैं इसको सेल मान लूंगा। क्लियर? अब इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोलेंगे उसको, बट इसमें एक एडजस्टमेंट ये है कि बीच में आ जाता है ईयर एंड। और ईयर एंड आने के बाद भी उसको दिया हुआ समय अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद समय है वो 5 अप्रैल तक आपको बोलने वाला। तो एक 11th स्टैंडर्ड में एक रूल था, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। 11 तो हुआ ही नहीं हमारा। अरे याद है कि नहीं? कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस की पैचिंग प्रिंसिपल, अक्रूवल प्रिंसिपल, ये सब कुछ याद है आपको? गोइंग कंसर्न, ये सब ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स है। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने उसको सेल आज बता दिया ना और फ्यूचर में उसने लौटा दिया ना, तो आपका तो पीएनएल गलत चला गया। आप तो दुनिया को बता दोगे कि आपका कितना सेल हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो आपका बैलेंस शीट और पीएनएल ओवर वैल्यूड दिखेगा। इसीलिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के आधार पर आप उसको सेल नहीं बताते। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? घर पे भी ऐसा ही होता है ना। घर पे अगर आपके मम्मी पापा को लगता है कि फ्यूचर में कुछ खर्चे होंगे, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे इसके माता पिता इसकी शादी के लिए पैसे बचा रहे हैं। अब शादी मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो फिर असर है क्यों? इस पे तेरे को शक लग रहा है? रैंकर है भाई वो।
बट फिर भी हम बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? बचाते ही हैं। लेकिन आपने कभी अपने पेरेंट्स से ऐसा नहीं सुना होगा, अरे 10 साल बाद है ना अपना बहुत इनकम होने वाला है, चल आज ही उड़ा देते हैं। ऐसा होता है? बट ऐसा में वो बड़ा 10 साल बाद कितने खर्चे हो जाएंगे मालूम है, क्या महंगाई हो जाएगी मालूम है, चलो बचाना आज से चालू करो। लेकिन ये नहीं सोचते कि 10 साल बाद इतनी इनकम हो जाएगी तो चलो आज से उड़ाना शुरू करो। नहीं, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भी सबकॉन्शियसली क्या फॉलो कर रहे हैं? कंजर्वेटिज्म। उसको अपने 11th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में लिखा, तुमको लग रहा है कि खर्चा होने वाला है, फिर किया हो कि ना किया आज ही रिकॉर्ड करो। और इनकम तुमको लग रहा है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो रुको, घाई मत करो। अरे यस और नो, इन दिस सिनेरियो व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो नॉर्मल सेल्स है 225 500, इसका तो मैं कोई प्रेशर लेने वाला ही नहीं हूं, मैं तो इसको सेल्स बताऊंगा क्योंकि ये सेल्स है। अब इधर ये 49 500 का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है, वेयर इज द क्वेश्चन, माय गॉड, ये रहा, नो अप्रूवल हैव बीन रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू 2/3। इसमें 2/3 2/3 का कोई अप्रूवल आया ही नहीं है। एक मिनट यार, 2/3 का अप्रूवल नहीं आया है मतलब 1/3 का? कॉमन सेंस आ गया। यस और नो? तो क्या आप एक मिनट बांट देंगे? यस। एक मिनट यार, तो ये भी तो टेंशन नहीं है, ये भी तो टेंशन नहीं है। 16,500 भी सेल्स है। एक मिनट, मतलब ये भी मेरा सेल है, ये भी मेरा सेल है। अब प्रॉब्लम है ये 33 की। बहुत बढ़िया। तो सब बच्चे क्या करते हैं, इसका अप्रूवल आया नहीं है, अभी कंफर्म पता नहीं है, तो ये माल उसका है कि मेरा है? ओनरशिप किसके पास है? अपने पास है, ये अपना अपने को मान के चलो। तो इतनी बार लोगों ने इसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में लिया। अब आप बोलोगे सर तो ये तो सही है, क्लोजिंग स्टॉक में तो लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, कौन ना बोला। लेकिन आपने देखा क्या ये 33,000 इज एट सेलिंग प्राइस? हमें क्लोजिंग स्टॉक पे हमेशा कॉस्ट पे लेना है। अपना क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट हो सकता है? इन्वेंट्री कॉस्ट पर एनआरवी विचएवर इज लोअर, उसमें प्रॉफिट कहां से आने लगे? अरे ये सर नो पक्का? तो एक मिनट, व्हाट वाज द जीपी रेशो? आपने स्टेप 1 में लिखा है 20% जीपी रेशो ऑन सेल्स। तो अगर मेरे को इसका कॉस्ट निकालने का है, $26,400। एक मिनट, क्लियर हो रहा है सबको एकदम दिल से? एक मिनट, तो ये और ये टोटल सेल्स कितना है? 2,42,000। दिस इज योर सेल्स। वेट, हाँ वेट, घाई नहीं करना है, लिखने की घाई नहीं करनी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? बाय सेल्स 2,42,000। यस और नो? और ये जो है 26,400, ये जो है 26,400, ये मेरा माल है, ये मेरा स्टॉक है। तो मेरे को इधर क्या लिखना पड़ेगा? यू नो, बाय स्टॉक विथ कस्टमर्स। कितना था वो? कैसा लग रहा है? छान छान, पक्का? एवरीबडी एक मिनट, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? ना ना, परसेंटेज 20, तो 2,42,000 का 20%, 48,400। तो आपको मिल जाएगा बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600। एकदम क्लियर है? पक्का पक्का? बना लीजिए प्लीज, बना ही लीजिए।
Anybody here interested in stock markets? एक दो, बस दो ही है, इतना बोर होगा मेरे को. तीन चार लोग करते हो थोड़ा सा डिमैट विमैट, मजा आवे. करेंगे अब डिस्कस थोड़ा. यस बैंक आ रहा भाई ऊपर. अब अपना भी एंटीलिया बनेगा. ऐसे आईपीओ में नहीं डाल. ओके, आर यू डन विद दिस? बड़ी कोई तो बोलो, हो गया ये. उसी के नीचे जल्दी से इसका वर्किंग नोट बना लो. बड़ी डन क्या? बढ़ जाऊं आगे? सबकी वर्किंग हो चुकी है. वर्किंग सबका हो चुका है, किसी का बाकी है? नहीं. कम ऑन क्विकली. स्टेप 3, व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू यार? ये रहा 12,300. कम ऑन क्विकली.
अरे बोलो। तो उसके बाद हमारा स्टेप 4 लागू होगा कि नहीं होगा? होगा यार, क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? बिकॉज मेरा जो इंश्योरेंस है वो आप देख सक रहे हैं 60,000 है, और जब मैं चेक कर रहा हूं तो मेरा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 62,600 है। थोड़े से के लिए रह गए, बट रह गए तो रह गए, करना तो पड़ेगा ही। तो लिखेंगे स्टेप 4, एज द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 60,000, as the policy amount that is 60,000 is less than stock on date of fire, is less than stock on date of fire, is less than stock on date of fire, next line admissible claim is equals to net claim क्या था 52 5300 into the policy amount 62,600 48211 परफेक्ट। बना लीजिए प्लीज। अपने पास नहीं था ना, क्लेम काय को लेंगे? जला था क्या? इंश्योरेंस लिया होगा मतलब। वो तेरे पास नहीं था ना, वो ये नहीं चेक करेगा कि कंसाइनी के पास कितना है, जॉब वर्क के पास कितना है, कस्टमर के पास कितना है, या इंटेंडिंग टू फोकस गोडाउन में कितना माल था। तो वो तो मालूम नहीं है ना अपने को, क्योंकि अपने को क्या मालूम कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा, वो तो हमने बेच डाला ऐसा। अब जैसे ऐसा भी होता है, अभी एक क्वेश्चन लेगा, सेल्स है, मैंने बेच डाला, तुमको बोला तुम घर पे जाओ, शाम में मेरा बंदा आके डिलीवरी लेगा, और आग लग गई, तो चलेगा तेरे को? तो ऐसे वक्त पे सेल होने के बावजूद भी मैं उसको सेल नहीं कंसिडर करूंगा। तो सेल नहीं कंसिडर करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर में ऐड हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल मैंने जो बोला समझा क्या? आपने टीवी लिया, टीवी पसंद भी आ गया, और उस दुकानदार ने कहा ठीक है शाम में हमारा टेक्नीशियन आके बैठा देगा, सेल तो हो गया। शाम होने से पहले धुआं धुआं हो गया, तो आपको चलेगा? वो आपको आप कॉल कर रहे हो, क्या हुआ मेरे टीवी का? तो सर टीवी तो चला गया। तो वो हम सेल में नहीं कंसिडर करेंगे। सेल में नहीं कंसिडर करेंगे तो किधर कंसिडर हो जाएगा? बट ऐसी जो अपना वो इन्वेंट्री वाला एडजस्टमेंट था कि बिल आ गया या माल आ गया, बट इसलिए एंट्री नहीं किया, परचेज में एंट्री कर लेंगे। परचेज में एंट्री कर लेंगे तो फिर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर में रिफ्लेक्ट होगा। अरे ये सर डन विद दिस एवरीबॉडी। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन 15। हाँ क्वेश्चन 15। अब मैं आपको बताता हूं इंस्टीट्यूट ने इतना खतरनाक गेम किया बच्चों का। नहीं अब चक चक करके क्या होगा, अब किया तो किया। हाँ क्वेश्चन 2 पहले देख लेना, उसके बाद हम लोग 15 पे भी जाएंगे। क्वेश्चन 2 और 15 आज के हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी फोकस प्लीज। क्वेश्चन 2 कहता है 20th of July the godown and the business premises of Raj were affected by fire। तो आपको उन्होंने 1 अप्रैल का ओपनिंग दिया है। अरे फिर से आया 10% लोअर देन कॉस्ट। फिर अप्रैल टू 31 परचेजेस है, सेल्स है, और अप्रैल टू 20th जुलाई परचेजेस और सेल्स है। वो कह रहे हैं सेल्स अप टू 20th जुलाई इंक्लूड्स 40,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। तो अभी हम लोग वो सेल्स में से लेस कर देंगे। फर्दर परचेजेस अप टू 20th जुलाई डिड नॉट इंक्लूड 20,000, जिसका सिर्फ बिल नहीं आया था बट गुड्स तो गोडाउन में आ गए थे, तो हम लोग उसको एड बैक कर देंगे। अब यही क्वेश्चन बैक टू बैक बहुत सालों तक चलता आ रहा था। तो इनबिल्ट ऐसा होता है ना कि जैसे हमको क्वेश्चन दिखता है, ऐसा मुझे मालूम नहीं होता है कि नहीं, बट मेरे साथ होता था कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करे होते थे बहुत अच्छे करे होते थे, और जब वो एग्जाम में वही दिखता है तो अपना एक एक्साइटमेंट लेवल अलग लेवल पे रहता है। अंदर से एक आवाज आती है कि मैं ही हूं भगवान का बच्चा, ये सब भगवान ही कर रहा है। तो इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन बहुत बार चलाया, इतनी बार चलाया कि पूछो मत। तो बच्चों का एक दिमाग में बैठ गया था कि ऐसा आया तो सेल से लेस परचेज में ऐड।
फिर एक समय आया, ये लाइन को एक बार फिर से देखना, सेल्स अप टू 20th जुलाई इंक्लूड्स 40,000 फॉर विच गुड्स वर नॉट डिस्पैच्ड। ये लाइन आपको याद हो गई। फिर एक समय आया, इंस्टीट्यूट ने कहा पैंडेमिक तो हो गया, आओ कुछ तूफानी करते हैं, और उन्होंने क्वेश्चन 15 को सबके सामने रखा। तो लोगों ने भी पढ़ा कि अच्छा 10% लोअर देन कॉस्ट, अरे ये तो अपना हो गया है, परचेज ये तो अपना हो गया है, सेल अपना हो गया है, और फिर वही एडजस्टमेंट, सेल्स, परचेज, जीपी रेशो, सैल्वेज और पॉलिसी अमाउंट। क्या लगता है आपको क्या बदलाव हो गया? ये ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट ऐसे चुपचाप से आके दे देती है धप्पा। यहां पर उन्होंने इंटेंशनली बोला है, यस और नो, एवरीबडी, वो खुद बोला डिड नॉट, तू क्यों लेस कर रहा? ये डिड नॉट हो मतलब लेना ही नहीं था, इस एडजस्टमेंट को देख के अनदेखा कर देना था, इसका कुछ भी करना नहीं था, ये गुगली था। बट आपको ऐसा लगता है इंटर है, टफ एग्जाम आई एम गिविंग, कुछ तो होगा, ऐसे तो नहीं देंगे वो यार। ये इंटर में एक अलग ही स्वैग चल रहा है, 2-2 पेज के क्वेश्चन है बड़ा इजी, लेकिन नहीं है, इंस्टीट्यूट ने दिया है तो कुछ इसमें शायद साइन अपॉन कॉस थीटा कोसेक, अरे क्या, कुछ भी नहीं करना है उसका, उन्होंने खुद बोला डिड नॉट इंक्लूड तो डिड नॉट इंक्लूड। और इसके पहले कब हमेशा से हम चला रहे थे इंक्लूड इंक्लूड, तो हम लेस करते थे, फिर इंस्टीट्यूट ने कह दिया बेटा डिड नॉट इंक्लूड, तो भी हम बोलते हैं नहीं इंक्लूड। इंस्टीट्यूट कह रही है कि फटाफट से पास हो जाओ, आप कह रहे हो नहीं मुझे और एक बार देना है, ऐसे कैसे होता है भाई? तो हम ये दोनों क्वेश्चन बैक टू बैक साथ में करेंगे, और जब हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम वहां पर ऐसा कुछ तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि जरा क्वेश्चन 2 के साथ देख समझ, ऐसा कुछ तो लिख देंगे। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फटाक से बताइए क्वेश्चन 2 में क्या स्टेप 1 करना था? क्या स्टेप 1 करना था? क्या हाँ करना है, आइए प्लीज, कम ऑन। क्वेश्चन 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ जिप्पू रेशो, statement showing calculation of जिपू रेशो, और ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए प्लीज, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया सबने? ओके क्या लोगे ओपनिंग स्टॉक? 1,00,000। परचेज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। बड़ी ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक 1,00,000, परचेजेस 4,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 2,00,000, सेल्स 6,00,000 और क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। This is your step 1. Yes or no? Quickly, step 2. Step 2.
Calculation of stock on date of fire. Calculation of stock on date of fire. What will be your opening stock? 1,20,000. बड़ी परचेज अभी मैंने कितना लिखना, तो मेरा परचेजेस पहले से 1,40,000 है और वो 20,000 का परचेज लेना भूलियो है, तो वो भूलियो है तो उसको अपन याद दिला देंगे, तो वो 140 प्लस 20 60,000, 1,60,000। और जो सेल्स है बड़ी, सेल्स कितना लेना चाहिए यार? 3,10,000 माइनस 40,000, 2,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे पास है ही 1/3, 270 का 1/3 90,000 बाय स्टॉक on date of fire. डॉट 1,00,000, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,00,000। $12,000। किसी को स्टेप 3 लिखना है, सैल्वेज वैल्यू इज 12,000। पॉलिसी अमाउंट नहीं है क्वेश्चन। अरे डन क्या बड़ी, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,00,000 सबका आया क्या? मैडम लिखा आपने? स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। $12,000 सैलरी वैल्यू है। सो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,00,000 माइनस 12,000 सैल्वेज वैल्यू, नेट क्लेम आएगा 88,000, है ना? पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया है तो नहीं आएगा। डन बडी, 88,000 बीन योर फाइनल आंसर। नीचे नोट लिखा, एज द पॉलिसी अमाउंट इज नॉट गिवन, एडमिसिबल ही नेट क्लेम है। ये लिखा क्या? ये लिखना जरूरी है। आई वॉन्ट यू टू कम टू क्वेश्चन 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ऑन 20th of October the godown and premises were affected by fire.
जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10% लोअर देन कॉस्ट है, ये क्यों करते हैं ऐसा? परचेज है, सेल्स है, नीचे उन्होंने कहा सेल्स का एडजस्टमेंट कर, तेरे को अगला अटेम्प्ट देना है। परचेजेस 40,000 ऐड कर देंगे। रिकॉर्ड बताता है कि 25% का जीपी रेशो है, सैल्वेज वैल्यू 31,000 है, और इस बार तो पॉलिसी का अमाउंट भी दिया है 1 लाख। क्वेश्चन कहता है करके दे। कैन वी स्टार्ट दिस? कम ऑन। स्टेप 1, पी रेशो 25% गिवन। स्टेप 1, calculation of GP ratio. GP ratio. GP ratio. डन, पक्का, बड़ी। चलिए अब क्या बनाएंगे? 1 मिनट रे, इसमें मेरे को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा यार। ये ओपनिंग स्टॉक में क्या करना है? ये कौन बताएगा? 2,916 किस पे खड़ा है? 90 पे। तो 100 पे कितना? 2,40,000। तो तुम लोग ओपनिंग स्टॉक 2,16,000 लेगा कि 2,40,000? 2,40,000। चलो ओपनिंग स्टॉक 2,40,000। मैं ये स्टेप 2 की बात कर रहा हूं, मेमो ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक 2,40,000। ओप्पो ओपनिंग स्टॉक। एक मिनट भाई। ओपनिंग स्टॉक 2,40,000। परचेज 280 है, और नीचे उन्होंने बोला है 40,000 का परचेज लेना है। सो 280 प्लस 40, 320 बाय सेल्स। कुछ करूं क्या? नहीं। टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर 620 पे ग्रॉस प्रॉफिट 1,55,000। 1,55,000 बाय स्टॉक on date of fire. ओपनिंग स्टॉक 2,40,000, परचेजेस 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,55,000 आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? सेल्स पर 25%, बाय सेल्स 6,20,000, बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 95। सैल्वेज 31,000। $64,000 आ रहा है क्या नेट क्लेम? 64,000 आ रहा है क्या? चेक कीजिए प्लीज। स्टेप 3 भी बोर्ड पर आ चुका है, कृपया इसका फायदा लें। धन्यवाद।
डन, सच्ची, पक्का, नेट क्लेम आया 64। अब एक मिनट, आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? पॉलिसी कितना है? स्टेप 4 आएगा, लिखेंगे एज द पॉलिसी अमाउंट दैट इज 1 लाख, as the policy amount that is 1 lakh is greater than stock on date of fire, is greater than stock on date of fire, is greater than stock on date of fire, which is what? 95,000, comma, admissible claim is equals to net claim is equals to 64,000. Tell me the numbers of questions that we did today. Five, 14 नहीं, हाँ, वही देख रहा मैं भी। अरे कुछ भी, रुको ना जरा। डन।